Hello everyone, a very good evening and welcome to a segment wherein we hope we live up to the title and show you all the polity questions that were asked as a part of UPSC Geoscientist examination that was very recently held on the 8th of February. The official paper of which was uploaded by UPSC, which is the commission concerned, on the 9th of February. We tried to collate all the questions that came from polity. 13 questions were directly from polity. One you can call, we took it from the history section. But in reality, we always study it in the historical background wala framework of polity as well. So I've included all those 14 questions and I will be now discussing the solutions for all those polity 14 questions that were asked. As the title of the video or the thumbnail also says, we would also show you how a particular source of ours was something that was able to deliver all the 14 questions intact. That being said, let's quickly move on to the first question without wasting further ado. अच्छा, before that, क्यों कर रहे हैं हम ये, उसका एजेंडा क्लियर होना चाहिए. यूपीएससी का सबसे लेटेस्ट पेपर अराउंड जनरल स्टडीज that has a portion of general studies as a syllabus was UPSC Geoscientist. That's the most latest as we sit on date today. क्या यूपीएससी का थीम है, what is the examiner's mindset as far as polity is concerned? I hope you know that there are subject specific experts for question framing at UPSC, which is a constitutional body at the level of commission. तो वहाँ पे it is most likely that the person who will be framing your questions for civil service examinations as far as polity is concerned is also the same person who will be framing your questions here. तो हम एक एग्जामिनर माइंडसेट, एक कमीशन माइंडसेट, एक कमीशन के पॉलिटी के थीम फोकस एरियाज एज फार एज 2026 और द लेटेस्ट पैटर्न इज कंसर्न को देखेंगे, इसलिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं, है ना. Not just that, we will also be using the templates, the questions as templates for us to focus on areas which to prepare, areas जिस पे हमको focus करने तैयारी करते हुए, and also is there any pattern that the UPSC is following, जो हम mad करते रहते हैं MCQ aptitude development, is that working or not? What we are teaching you at the end of the day, majority of you what English would be our students, तो क्या हम आपको सही deliver कर पा रहे हैं? On that note, let's quickly get started and move to the first question, which is around the voting age in India. So the question is, the voting age in India was changed from 21 साल to 18 साल under which of the following constitutional amendment acts? Now you know that India has a universal adult suffrage. Suffrage मतलब right to vote. Article 326 Constitution के बहुत सारे articles which talk about it, and universal मतलब everybody who's an adult. Universal adult suffrage. So everybody who's an adult has the right to vote, and we would allow each vote has one value as far as the direct elections to the इंडियन पार्लियामेंट आर कंसर्न. दैट बीइंग सेड, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कब हुआ था कि 21 साल से 18 साल एडल्ट को माना गया था. प्रीवियसली anybody who was above 21 years of age was and a citizen of India was allowed to vote. As on today, it is 18 years. Anybody who is above the 18 years of age is allowed to vote and as an entitled citizen of the country. Now, coming to the original question, कि ये कब हुआ था? That is the question. क्यों हुआ था is something that we'll discuss during the answer of it. But I hope you are all on the same page कि अब यूनिवर्सली एडल्ट की डेफिनेशन 18 साल मान ली गई है ना. तो 43rd amendment, 48th amendment, 61st amendment and 69th amendment. The answer is option C, 61st Amendment Act 1989. This was during the tenure of which prime minister? Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. Class में भी while I was discussing your polity in a 15-hour marathon, मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी जी, अब हमेशा ना ऐसे की फैक्ट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एसोसिएशनल फॉर्म करेंगे, थोड़ा सा रीजनिंग पे जाएंगे तो चीज़ें बेटर होंगी. वाई? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है दैट श्री राजीव गांधी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ वेरी कैरिज्मेटिक यंग लीडर, a leader who had a lot of charisma and a lot of young population, young people, young genre of people had a liking for him. तो उन्हें लगा कि क्या मैं 21 साल से अगर 18 साल करता हूँ तो मेरा वोटर बेस बढ़ेगा, और वो क्या वोटर बेस ऐसा है जो मेरे को वोट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि मैं यूथ में पॉपुलर हूँ, मैं बहुत यंग हूँ, मैं थोड़ा सा हैंडसम हूँ. सो येस, नाउ दैट बीइंग सेड, उन्होंने क्या किया, 21 साल से 18 साल करने की कोशिश करी कि जो 3 साल के गैप है, this 3 years of people ranging from 18 years to 21 years vote for him, assuming that they would vote for him. That is when he came out with the 61st amendment, which did nothing but reduce the tenure from the age of elections from 21 years to 18 years, right? अब ये हमने कहा, the source that we were talking about are primarily twofold, but 3 चीजें हैं. सबसे पहली, our one-stop comprehensive solution for prelims. What is it? It's known as Blue Book. We have come out with something known as Blue Books, which has a one-stop comprehensive entire solution as far as static for prelims is concerned for each and every subject. उसी के तहत एक polity blue book भी है. We summarize the entire polity in not more than 200 pages for you. That is everything. Short notes अलग बात है ना.
Second, we are running something known as MAD series or MMT series. MAD is nothing but MCQ aptitude development. उसके तहत we have a lot of tests that we are conducting for the students. There were 8 sectional tests and 1 full length test for polity specifically, 9 sectional and 1 full length for polity specifically. Sectional में 50 questions थे और उसमें 100 questions थे full length में, ठीक है. What is MAD? MAD is nothing but how to develop your aptitude around MCQ solving or questions solving for objectively. अब ये ज़्यादा important नहीं था. What is more important is what are the learnings that we are taking as far as the UPSC psychology is concerned और UPSC focus areas are concerned. But इसके तहत मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे ये सब cover भी किया हुआ है and some things that you can rely on. Right? Focus magazine is one of our free annual compilation available as far as current affairs is concerned. So there was one question from current affairs that was also covered there, right? Khair, moving on, without taking further of your time, I will show you how we have covered it. This is a screenshot directly from the Blue Book talking about the 61st Amendment. What did it do? This is the screenshot from our test series as it is. Cut paste replica hai. Question number 45 of some test. I am not able to recall the test number. As it is, statement है the 61st Constitutional Amendment Act 1988 reduced the initial voting age of 21 years to 18 years, and then here's an explanation as well. Second, directly match the following question है. This was a part of FLT जो सबसे recent हमारा full length test पॉलिटी का cover किया हमने. 61st Constitutional Amendment Act, Prime Minister कौन थे? श्री राजीव गांधी, and then of course in the explanation you will find everything that you need. दोनों से बहुत ही आसानी से, तीनों से in fact 2 questions from the test and 1 question directly from the ब्लू बुक. अच्छा, माइंड यू दीज आर नथिंग बट मोर देन 8 हमने अभी कंडक्ट किए, 9th हमने पेंडिंग रखा था करंट अफेयर्स के लिए. सो 8 into 50 इज हाउ मच 400 एंड एक FLT किया है 100 का. तो टोटल 500 क्वेश्चंस में से ये सारे के सारे 14 के 14 क्वेश्चंस वी आर एबल टू डिलीवर टू यू. खैर, दैट इज नॉट द मतलब प्राइमरी एजेंडा ऑफ इट. द मेन थिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन इज हाउ वी आर एबल टू डेवलप द साइकोलॉजी दैट द UPSC इज ट्राइंग टू आस्क एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली. Alright, question number 2. The preamble of the Constitution serves which of the following purposes? There are a lot of purposes that the preamble serves. You know, we the people of India से वो start होता है, खत्म होता है date of adoption and action पे. तो वो सब चीज़ें हैं आपके बीच में objectives अगर आते हैं तो एक बार quickly देख लेते हैं. Source of power for the legislature. Is a preamble serving as a source of power for the legislature? The preamble starts with the terms "we the people of India." मैंने अपने lectures में आपको ये भी बताया था बहुत ही क्रिस्प तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ अटॉक्थनी. याद आ रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अटॉक्थनी, वी द पीपल. अटॉक्थनी इज नथिंग बट वी आर डिराइविंग द पावर फ्रॉम पीपल. But mind you, we are not giving you the source of authority for the legislature. We are giving you source of authority for the entire constitution. See option 4. States the source from which the constitution derives its authority. The first line of the first thing of the constitution, first thing of the constitution preamble, first line, we the people. So it is giving you the source from which the constitution is deriving its power. Of course, that being said, constitution has all the 3 organs ka powers, which is legislature, executive and judiciary. So source of power for the constitution itself, organs of government to baad mein aayenge, is what is the primary purpose of preamble. तो legislature वाला गलत हो जाएगा and constitution वाला सही हो जाएगा. Second, states the objectives which the constitution seeks to establish and promote. Seeks to, constitution कुछ objectives establish करने की कोशिश कर रहा है. बहुत सारे keywords हैं preamble में, justice, liberty, equality, fraternity, integrity, unity. All these are nothing but objectives, है ना? So this is what the preamble also tries to set out. Yes, so this becomes correct. Third, lays out provisions for economic liberty. अब जब liberty की बात करते हैं तो for example liberty of thought, expression, belief, faith and worship. On the other hand, we talk about justice as an objective. Justice is threefold: social, economic and political. तो justice economic है, liberty नहीं. liberty तो thought, expression, belief, faith, worship की है. तो third भी गलत हो गया, first गलत हो गया, third गलत हो गया, second और fourth सही हो गया. आंसर आ गया ऑप्शन नंबर B. मैड में क्या सिखाते हैं? 4 का 2, वो भी दिख रहा है यहाँ पे. मैड में क्या सिखाते हैं? मोर रिफाइंड कट कॉपी पेस्ट इंडिकेटर्स. मैड मनोवर्स आपके स्टार्ट ही हो गए हैं बस, है ना? कट कॉपी पेस्ट इंडिकेटर क्लियरली दिख रहा है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है, कट कॉपी दिख रहा है. ये ऐसा लग रहा है अब यहाँ से सोर्स ऑफ पावर की तो बात कर रहा था तो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो गया. सोर्स ऑफ पावर लेजिस्लेचर लिख दो, लेजर प्रोविजनल इकोनॉमिक लिबर्टी इंटरचेंज कर दो. बहुत ही कम, छोटा सा. मोर डिफाइंड, मोर इलेबोरेट, कट कॉपी पेस्ट, ऑल ऑफ दिस कैन बी सीन. 4 का 2. सो मैड भी लग गया, नॉलेज से भी बहुत आसान था. खैर पॉलिटी इकोनॉमी में ज्यादा मैड लगाना भी नहीं है, बट ठीक है. what are we trying to achieve to you, what we are trying to teach to you is that right or not is what we are discussing today, along with what is the real time examiner mindset as far as UPSC or as a commission is concerned.
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, हैव वी ट्राइड टू कवर इट। अच्छा, मैं पहले एक दो में ही ज़्यादा दिखाऊंगा अपने सोर्सेस, उसके बाद बस स्क्रॉल थ्रू रहूंगा स्लाइड्स को, बिकॉज नीड टू सेव ऑन टाइम, योर टाइम इज मोर प्रेशियस, राइट। अभी आपका मेन एजेंडा ऑफ द वीडियो इज कि हम टेम्पलेट्स देख लें, किस पे यूपीएससी भी फोकस कर रहा है एज फार एज पॉलिटिक्स कंसर्न, ठीक है। तो भाई सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज हमारा ब्लू बुक में कवर्ड है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कवर्ड है फॉर द विच इज द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एज इट इज वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम। बाकी लिबर्टी किस किस चीज में आती है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप में आती है। बाकी दो क्वेश्चन थे प्रीएम्बल पे इन आवर टेस्ट सीरीज एज इट इज, यू कैन सी उसके एक्सप्लेनेशन में भी लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप वगैरह मेंशन्ड है। विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्ड में कौन से 3 स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथराइज्ड। नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी खंड, कोई भी पार्ट कैन बी चेंज्ड, मैं नहीं चेंज कर सकता कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन द्वारा। क्या हो गया ऑर्डिनरी, मान लो बिल, अनलेस सो ऑथराइज्ड, एक ऐसी लेजिस्लेशन जो ऑथराइज्ड नहीं, ऑथराइज्ड मतलब जिसको अथॉरिटी नहीं मिल गई है। अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है, प्रीएम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज पीपल देमसेल्व्स, पीपल हैव डेलीगेटेड दैट पावर्स और अथॉरिटी टू पार्लियामेंट, they directly elect people, they directly elect representatives. Excuse me, we do not have a direct democracy. Why? Because India is a very populous country. स्विट्जरलैंड में चल रहा है रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल इनिशिएटिव, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम पॉपुलेशन, हमारे पास ज़्यादा है, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के द्वारा, जिनके पास हम पावर देते हैं। तो अथॉरिटी किसको दे दी हमने, पार्लियामेंट को। तो ये बोल रहा है कोई भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता, चेंज मतलब अमेंड है ना, नहीं हो सकता। अमेंड में 3 आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो ये मॉडिफिकेशन वाली पार्ट की बात कर रहे हैं, चेंज नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन आए जो ऑथराइज ना की गई हो। ऑफ कोर्स, सो एनी बिल दैट विल बी पास बाय द पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 क्या बोलता है, 3 पार्ट है पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जब तक ये तीनों, प्रेसिडेंट गिव्स द असेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा पास इट कैन नॉट बी चेंज। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यू नो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसी की बात करता है। सेकंड, अच्छा सेकंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट अटेंशन आपकी ड्रॉ करना चाहूंगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, सारे खंड, सारे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द बेसिक फीचर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड आगे लेकर जाऊंगा और अपने टेस्ट का एक चीज दिखाऊंगा, उसका एक बहुत बड़ा इशू था तो इसलिए मैं आपको डिस्कस कर बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। अगर मैं बेसिक पार्ट कोई है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड कर रहा हूं और उसका नेचर चेंज नहीं कर रहा, तो मेरे को अलाउड है। क्या ये सही है या गलत है? स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। वी हैव सेड दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट डिस्टॉर्ट, डैमेज और ऑल्टर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अमेंडिंग इट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अपोजिशन किया था कि सर यहाँ पे बेसिक पार्ट यूज किया गया है और विदाउट चेंजिंग नेचर भी है। अगर आपको ये गलत ही करना था तो आप बेसिक स्ट्रक्चर यूज करो, बेसिक पार्ट तो कुछ भी हो सकता है। वेयर आई केम एंड एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन इज बेसिक पार्ट। क्या बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है, टर्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मतलब ऑफ कोर्स उसके कंपोनेंट्स ने डिफाइन कर रखे, बट एक डॉक्ट्रिन तो डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ इट्स नेम विच इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे बेसिक पार्ट कैसे यूज कर रहे हो? लुक एट द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी, they have used the term basic features and in all likelihood I can have a bet on it or surety on it कि ये गलत ही माना जाएगा, not because you do not have a basic structure of the constitution but ये word features, ये word parts, सारे के सारे basic चीज़ों को ही, basic structure doctrine को ही enunciate करना चाह रहे हैं। and you know as a part of Keshavananda Bharati case 1973 this is not possible, so all parts of the constitution can be amended except those which are a part of the basic feature, है ना। तो ये हो गया जी आपका गलत। this is the beauty of the team that is working behind our MAD tests, which are the MCQ aptitude development tests or the MMT tests, MAD mentorship and test series, है ना। तो मतलब इस क्वेश्चन बाजी में कि आपने ऐसा क्यों पूछा, इसमें नहीं करना है, जितना बताते हो उतना करते रहो, it will be more than good for you, okay। Third, the fundamental rights can be amended under Article 368, absolutely right। अभी एक वेबिनार होल्ड किया था हमने फ्रेशर्स के 2027 के लिए, एक सवाल पूछा था मैंने, आर फंडामेंटल राइट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? 400 बच्चों के आसपास थे, ऑल सेड यस, देयर वाज ओनली वन पर्सन हु सेड नो, तो बाकी सब ने यस बोला था। अगर भाई फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता और बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते तो फंडामेंटल राइट्स कैसे अमेंड होती? क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं होती? आर्टिकल 21 क्या है? एडिशन टू आर्टिकल 21। 19(1)(f) थी प्रॉपर्टी, हटाई थी नहीं हटाई थी? 31 में प्रॉपर्टी की बात हुई थी, हटाई थी नहीं हटाई थी? इनको हटाया था नहीं हटाया था? अमेंडमेंट हुई थी। 21A अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। तो अगर फंडामेंल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर होता है और अमेंड ही नहीं हो सकते तो वहाँ पे ऐड कैसे हो रहा है? सो ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। योर आंसर बिकम्स ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। आई होप आई वाज एबल टू डू जस्टिस टू द क्वेश्चन। क्विकली दिखा देता हूँ कि हमने सोर्स में कवर किया था नहीं किया था। यस, दिस इज योर प्रोसीजर अमेंडमेंट, ये सारे ब्लू बुक है और ये पूरा का पूरा आपका टेस्ट सीरीज से एज इट इज कट कॉपी है। एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, पार्ट, फीचर, डॉक्ट्रिन नहीं यूज कर रहा कोई भी,
और वो भी यहाँ पे कवर्ड है। क्विकली मूविंग ऑन, मैंने बोला था आपको कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा सोर्सेज पे, बट जस्ट गो थ्रू करूँगा, तो वही कर रहे हैं। नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट LSG इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? 73rd अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992-3 में ये बातें करी थी। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या बोथ यूनियन एंड स्टेट लिस्ट इन विच द सेंटर इज द फाइनल से। ठीक है भाई, सेंटर का फाइनल से है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ऐसा है क्या? आजकल तो हम एक मतलब वी यूज टू स्टडी इट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट नाउ तो GS2 स्टूडेंट्स ऑल्सो नो इट। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। What is this principle of subsidiarity? This principle says that the delegation of power should be at the lowest level where it can be performed best. As lowest a level as possible where it can be performed best. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? लोकल लेवल की नीड्स को कैटर करना है। लोकल लेवल की नीड्स लोकलाइज्ड होंगी, स्पेसिफिक होंगी, जनरल तो नहीं हो सकती, एक यूनिफॉर्म टेम्पलेट नहीं आप अप्लाई कर सकते। एक राजस्थान के गांव के और एक केरला के गांव की नीड्स अलग होंगी, इवन नॉट जस्ट रूरल एरियाज बट अर्बन एरियाज ऑल्सो। तो लोएस्ट डेलीगेशन करनी पड़ेगी, पीपल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? लोएस्ट लेवल पे। इस पूरे क्वेश्चन में लोएस्ट लेवल क्या है? स्टेट लिस्ट। हालांकि आपको पता है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा 29 सब्जेक्ट्स और इस अमेंडमेंट के द्वारा 18 लिस्ट ऑफ आइटम्स को हमने डेलीगेट किया था कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास वो एम्पावरमेंट होगी जो स्टेट खुद से डिसाइड कर सकती है। ऑल ऑफ दैट इज टेक्निकल, बट बहुत ही सिंपल, जस्ट एन सिंपल वाई बेस्ड अप्रोच टू पॉलिटी इज व्हाट यू कैन हेल्प टू इज व्हाट यू कैन यूज टू अराइव एट योर करेक्ट आंसर। सीधा सीधा आंसर स्टेट लिस्ट होगा। अब इसमें तो सोर्स दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो आप। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर्स होते हैं, जितने भी आप पंचायत 243 ZD वगैरह सब जितना भी आर्टिकल पढ़ोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्टेट लिस्ट ही है। बट ये तो विदाउट गोइंग, अगर इफ यू नो द एसेंस ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, देन यू वुड हैव अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर। ऑलवेज लुक एट व्हाई, एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू टीच आई हैव गिवन माई बेस्ट टू मेक यू कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग, है ना। कॉन्सेप्ट सही होंगे तो आंसर सीधा सीधा आएगा। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय अ क्लियर आंसर। बहुत सारे बच्चों ने इसमें आई एम प्रीटी श्योर प्रेसिडेंट करा होगा, बट चिल्ला चिल्ला कर क्लास में 10 से 20 बार डिस्कस कर चुका हूं। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट सीधा सीधा आर्टिकल है, आगे देख लेते हैं। सीधा सीधा आर्टिकल है, आर्टिकल 124 which says it does not specify the exact number of judges in the Supreme Court, it only says एक चीफ जस्टिस होगा एंड एज मेनी जजेस एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब, नॉट द प्रेसिडेंट बट द पार्लियामेंट। आज की डेट में 33+1 34 है, 33 इज द नंबर ऑफ जजेस एंड 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओरिजिनली 8 थे, 7 से 1, वो बढ़ते रहे, कैसे बढ़े? पार्लियामेंट के द्वारा। CSE 2014 में एक मतलब द गुड थिंग अबाउट ब्लू बुक्स इज जो भी PYQ है वो एज इट इज आपका इंक्लूडेड है ब्लू बुक में, प्लस एक अलग कलर से बोल्ड किया हुआ है ताकि आप उस पर ज्यादा ध्यान दे सको। पहला ब्लू बुक का स्क्रीनशॉट। दूसरा, नंबर ऑफ जूनियर जजेस, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है तो रीइटरेशन, फैक्ट्स की रीइटरेशन हो रही है ताकि इजी रिकॉलिंग हो सके, है ना। और टेस्ट में तो पूछा ही एज इट इज। ये देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज डन बाय द पार्लियामेंट। सीधा सीधा, है ना। सो बट खैर एनीवे वे, ये तो हमारे से भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा बेयर एक्ट आर्टिकल 124, ये बहुत ही बेसिक्स ऑफ पॉलिटी एंड यू आर डन विद इट, राइट। नेक्स्ट, Who among the following holds his or her office at the pleasure of the president? जितनी भी constitutional bodies हैं, usually not, मतलब I would not say absolutely all, usually the constitutional bodies, majority of them, usually all of them, are appointed by the president. What is the pleasure of the president? Pleasure of the president मतलब president की चाहत पे, उनकी मन पे, not whims and fancies, मन मर्जी नहीं। जब although the pleasure of the president is technically nothing but the pleasure of the Union Council of Ministers, है ना। तो Council of Ministers headed by the Prime Minister जब बोलेंगे तो वो है that all of those are technical aspects, but conceptually इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे नहीं भी आता तो वो बता रहा हूँ। तो pleasure of the president का मतलब वो जब वो चाहे हटा सकते हैं, है ना। Hold his or office at the pleasure of the president, कि उनकी जो पोजीशन है वो प्लेजर पे है प्रेसिडेंट के, ठीक है। मैं इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी होती है ज्यादातर, ठीक है। तो अगर मैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ऑफिस होल्ड कर रहा हूं, मतलब मैं कभी भी हट सकता हूं। जब प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट मैडम चाहे वो मेरे को हटा सकते हैं। द प्रेसिडेंट शी और ही कैन इजीली रिमूव मी एट देयर प्लेजर। क्या मैं ज्यादा इंडिपेंडेंट ऑफिसेज में प्लेजर रखूंगा या ऐसे ऑफिसेज जिसमें कम इंडिपेंडेंस चाहिए उसमें प्लेजर रखूंगा? इफ आई हैव टू मेक श्योर दैट द ऑफिसेज आर इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स आई विल मेक द प्रोसेस ऑफ रिमूवल टफ फॉर देम, द डिपेंडेंसी ऑन प्रेसिडेंट लेस फॉर देम। ऐसे ऑफिस जिसमें मेरे को इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है तो प्रेसिडेंट साहब से विम्स एंड फैंसी से दूर रखूंगा ना मैं। तो देखते हैं, चेयरमैन ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करती है? रिक्रूटमेंट करती है। ग्रुप ए पोस्ट, वेरी हाईली लुक फॉरवर्ड टू, आप सब भी उसी की तैयारी कर रहे हो। तो उसके जो चेयरमैन साहब होंगे, रिक्रूटमेंट में गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए?
ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. सो दिस इज अ बॉडी दैट रिक्वायर्स मच ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, ताकि रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई से ना आ जाए गवर्नमेंट को और वो अपने ही लोगों को रिक्रूट ना करते रहे. थर्ड देखो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा. स्पीकर साहब कौन होते हैं? स्पीकर साहब इज अ पर्सन हु होल्ड्स द हाईएस्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ रनिंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप. Excuse me. Really sorry for the cuffs in between. Not doing well. But Speaker of the Lok Sabha is responsible for primary functions of the running of the assembly, है ना. तो पार्लियामेंट हो, स्टेट लोकसभा हो गया, लोकसभा का स्पीकर हो गया, चेयरमैन का राज्यसभा हो गया. बट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्राइमरी, और लोकसभा के पास ही पावर ऑफ पर्स होती है. पावर ऑफ पर्स इज ओनली मनी बिल्स, ऑल ऑफ दिस यू नो. तो क्या मैं स्पीकर जो एक लेजिस्लेटिव पोस्ट हो गई उनको एग्जीक्यूटिव के दायरे में रखूंगा या एग्जीक्यूटिव से दूर रखूंगा? What is the concept of separation of powers? This was given by the political philosopher Montesquieu. चलो एक खैर ये अलग बात है. Separation of powers के तहत legislature executive अलग अलग होंगे. This is the primary functionary of the legislature. So would you not require independence here? Of course you would. तो pleasure पे नहीं हो सकता. Third, CAG, Article 148 से 151. The topmost functionary who looks after the finances and the spending of them. Audit करते हैं. पैसा सही यूज हुआ नहीं हुआ. तो अगर पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस से ज्यादा लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्राइमरी फोर्स सीकर और केयर टेकर इज कैग. क्या उनकी इंडिपेंडेंस चाहिए? बिल्कुल चाहिए. अगर नहीं होगी तो सारा पैसा खा जाएगी सरकार. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंस. अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 क्या कहता है अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल इज नथिंग बट द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. लॉ ऑफिसर किसके? गवर्नमेंट के. मोर देन 60% ऑफ द केसेस आर ऑफ द गवर्नमेंट. 92,000 केसेस है नेशनल जुडिशियल ग्रिड की डेटाबेस के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट अलोन में पेंडिंग है ना. एक नीति आयोग की भी रिपोर्ट आने वाली है. 512 साल, 512 years is the amount of time you would require to solve all the cases that are pending within the judiciary in India, provided 512 साल कब लगेंगे? केसेस खत्म करने के लिए जितने पेंडिंग हैं, जब कोई न्यू केस रजिस्टर ही नहीं हो रहा. Not only that any new case is registered, but also that no case is transferred. मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का केस है वही खत्म हो गया, हाई कोर्ट का केस है वही खत्म हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया. तो अगर मैं एक भी केस ट्रांसफर ना करूं या अपील ना करूं और एक भी केस नया ना लाऊं, तब भी मुझे 512 साल लगेंगे. दिस इज अ रिपोर्ट दैट इज अबाउट टू कम फ्रॉम नीति आयोग, राइट. खैर, दिस इज द लेवल. तो coming back to the original point, attorney general is nothing but the highest law officer of the country who fights cases on behalf of the government. गवर्नमेंट के वो लॉयर है. अगर गवर्नमेंट के लॉयर है तो ऑफ कोर्स प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट पे काम करेंगे ना. मान लो कि मैं एक ऐसा लॉयर बन गया अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोले जा रहा हूँ, तो भाई फायदा ही क्या हुआ उस पोजीशन का. सो ऑफ कोर्स अ पर्सन विल बी बेस्ट पॉसिबल फिट फॉर प्लेजर वुड बी अ पर्सन जिसमें लीस्ट इंडिपेंडेंस चाहिए, विच इज अटॉर्नी जनरल. तो सरकार अगर चाहेगी सरकार के लॉयर को हटा दो. आप अपने पर्सनल लॉयर को कभी भी हटा सकते हो, तो सरकार को भी अलाउ होना चाहिए. आई होप वी वर एबल टू डू जस्टिस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई द आंसर वुड बी व्हाट द आंसर इज. नेक्स्ट ऑफ कोर्स अटॉर्नी जनरल, फिक्स्ड टेन्योर, प्लेजर, मतलब प्रेसिडेंट्स प्लेजर विदाउट अ फिक्स्ड टेन्योर, आर्टिकल 76, ये सब ठीक है, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स. हाउ मेनी ऑफ द स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर? टोटल कितनी स्टेट्स हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है? 6, है ना. आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब इसमें चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑल 4. ये तो बहुत ही मतलब दिस इज वन क्वेश्चन विच रिफ्लेक्ट्स यू हाउ यू हैव टू रिटर्न टू द बेसिक्स. ये नहीं सोचना कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस टाइप फैक्ट नहीं पूछेगी, पूछ रही है ना. न्यू साइकोलॉजी, न्यू माइंडसेट ऑफ व्हाट द कमीशन इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो हैव ऑल योर बेसिक्स राइट प्लीज. सिर्फ 6 स्टेट्स हैं, हाँ, याद करेंगे. हमारे इसमें आर्टिकल 168 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा ही हुआ है. कौन सी 6 स्टेट्स हैं आज की डेट में? आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, ये 3 नीचे की, यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र ऊपर की, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु. दीज आर 2 स्टेट्स व्हिच आर कंटेस्टेड. क्या बोलते हैं? इट आर्टिकल 168 सेज कि वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर हैज पास्ड इट. स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वेस्ट इज subject to parliamentary approval. तो you know how the political tussle between the West Bengal government and the central government is happening these days. तो वहाँ पे हम उनको क्रिएट नहीं करने दे रहे. सेम में तमिलनाडु, बट ये दोनों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी हुई है, पास करा हुआ है, बट हो नहीं रही है. दैट इज वाई एज ऑफ टुडे 6 states are there which have a bicameral legislature. ये हमारी ब्लू बुक में था. सीधा सीधा नीचे क्वेश्चन है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पे, और उसमें आंसर में आपको पूरी की पूरी 6 स्टेट्स रखी हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं. दिस वाज अ पार्ट ऑफ अवर मैट टेस्ट, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड्स टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. अच्छा, अब इमरजेंसी कौन सी होगी भाई? 352 होगी, 356 होगी, 352 होगी. 356 इज द प्रेसिडेंट्स रूल. तो अगर क्वेश्चन पूछता वो तो प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल पूछता, है ना. तो नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही होगी. इट कैन नॉट बी इन ऑपरेशन अनलेस अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month. एब्सोल्युटली करेक्ट. 2 months किसका होता है? 356 का. 1 month होता है 352 का. प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू.
एक स्टेटमेंट बताता हूँ मैं, 20 से 30 से 40 पे 50 बार रिपीट करी होगी अपनी क्लासेस में, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, आप इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट अगर इंटरस्टेट काउंसिल का भी डिसीजन आर्बिट्री है तो भी चार्ज हो सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि एग्जाम्प्ट होगी, बट अगर डिलिमिटेशन कमीशन का भी प्रोसेस आर्बिट्ररी था तब भी वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है। सो केस इन पॉइंट, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। मिनर्वा मिल्स केस 1980, कम से कम 50 बार डिस्कस करा होगा। तो क्या प्रोक्लेमेशन जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रोक्लेमेशन अगर जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होगी तो क्या प्रेसिडेंट साहब जो डिक्लेयर करते हैं, प्रेसिडेंट मैडम जो डिक्लेयर करते हैं, वो तानाशाही नहीं हो जाएगी? कभी भी डिक्लेयर करो, कोई जुडिशियल रिव्यू है ही नहीं, कोई रीजन नहीं था। थर्ड, a proclamation of emergency may be made by the president of India at any time of the security of the country is threatened, absolutely correct। may से उसको लाइट कर रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको मैड टेस्ट में सिखाते रहते हैं, कैसे उसको लाइट कर रहा है, कैसे लैंग्वेज सही बना रहा है। अगर थ्रेटन सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है कभी भी, ये तो पॉजिटिव चीज़ है ना, अब एनी से लोग काट रहे हैं, बट तो कभी भी अगर सिक्योरिटी थ्रेटन हुई तो मेरे पास एक प्रोविजन है कि मैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन एनी टाइम ऑफ द लोकसभा पास रेजोल्यूशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। रिमूवल ऑफ इमरजेंसी के 3-4 तरीके हैं, होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट्स में बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक होता है पार्लियामेंट बाय एक्सीडेंट, अगर पार्लियामेंट ने अप्रूवल ही नहीं दिया तो रिमूव हो गया। एक होता है पार्लियामेंट बाय रेजोल्यूशन, लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो गया तो प्रेसिडेंट को करनी पड़ेगी। एक क्या प्रेसिडेंट खुद कर सकते हैं? ऑफ कोर्स अगर उन्होंने खुद ही लॉन्च किया तो होमवर्क खैर मैंने बता ही दिया, बट ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हमने कवर किया था, कहाँ किया था, देख लेते हैं। सोर्सेस, ब्लू बुक, आर्टिकल 352, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड, ऑल, ये तो नॉट जस्ट एनी टाइम, मैं बताना भूल गया, नॉट जस्ट एनी टाइम बट एट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री भी डिक्लेयर हो सकता है, तो पूरी कंट्री में या किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में भी डिक्लेयर हो सकता है। 1 मंथ में उसको रिव्यू करना है। अच्छा, दिस इज वन थिंग दैट यू विल नॉट फाइंड इन मेनी सोर्सेज, है ना, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, एज लिख देते हैं। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये हमारी ब्लू बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ था। लास्ट पॉइंट है नेशनल इमरजेंसी का, है ना। दिस इज द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। और फिर ग्रेव सिक्योरिटी थ्रेट पे तो बेयर एक्ट ही है। अच्छा, ये वो जो लोकसभा वाला था, the Lok Sabha passes a resolution disapproving the continuation of the emergency, the president is mandatorily required to revoke it। यहाँ पे the president can revoke a national emergency by making subsequent proclamation only with parliamentary approval, नहीं, खुद भी कर सकते हैं और पार्लियामेंट पे तो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। What is the full form of SIR? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कोर डायरेक्ट करंट अफेयर सबसे लेटेस्ट। SIR इज नथिंग बट स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, तो आंसर हो जाएगा सी। मैट देख लेता थोड़ा सा, इंटेंसिव रिविजन, स्पेशल, तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या आया? सी। अगर यहाँ पे भी स्पेशल होता तो कंफ्यूजन होती, है ना, इंटरनल रिपीट नहीं हो रहा, रिव्यू 2 बार आ रहा है, बट इंटेंसिव रिविजन इंटायरली रिपीट हो रहा है ना, इंक्लूसिव एक ही बार आ रहा है तो ये कट गया, स्पेशल 2 बार आ रहा है ना, तो इसका ये वाला आंसर, मतलब ये कट गया तो ये तो कट ही गया। सिलेक्टिव एक ही बार आ रहा है तो ये भी कट गया। स्पेशल इंटेंसिव, ये तो पूरे मैट मैनूवर्स हैं जो हम आपको सिखाते रहते हैं, वी हैव आल्सो कोडेड इन द 7 आवर वीडियो लास्ट ईयर। बट खैर, दैट बीइंग सेड, बहुत ही सिंपल, किसी ने थोड़ा सा भी बेसिक इसका पढ़ा होता तो इसको सही करता। हमने कहाँ कवर किया? 2 जगह कवर करने की कोशिश करिए। द करंट अफेयर्स दैट वी यूजुअली कवर इन एन एनुअल कंपाइलेशन इन द फॉर्म ऑफ फोकस का पूरा SIR हेडिंग है और पूरी एक्सप्लेनेशन है। और सबसे लेटेस्ट एफिलिटी ऑफ क्वालिटी, दिस इज द क्वालिटी, है ना, टेस्ट टीम लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें इंक्लूड कर रही है। अभी शायद मैंने पिछले 4 दिन पहले डिस्कस किया ये, है ना, 5 दिन पहले टेस्ट हुआ होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हम तो ये नहीं पूछ रहे SIR की फुल फॉर्म क्या है, यूपीएससी तो आपसे बेस पूछ रहे हैं, हम आपको एडवांस पूछ रहे हैं। SIR इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसका पर्पस बताओ, ये पूछा है। अगर ये आता हो तो ये तो आ ही जाएगा। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is correct about the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India? Advisory jurisdiction क्या है? आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जुरिस्डिक्शंस होती हैं, ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सके, ओरिजिनल मतलब जो आप पहले इंस्टेंस में ही सुप्रीम कोर्ट पे जा सको, अपेलेट मतलब क्या अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से एक जुरिस्डिक्शन होती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नाउ what is advisory jurisdiction? Wherein the president, मतलब of course president is nothing but an extension of the executive sometimes in the constitution for arena, उसमें 143 बोलता है कि प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। अब वो एडवाइस क्या हो सकती है? 2 चीज़ों पे हो सकती है, एक होती है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, एंड सेकेंड एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। तो अगर कोई चीज़ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना नेसेसरी होगा? बिल्कुल, क्योंकि भाई अगर हम फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन किसी टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो और आप लॉ के एक्सपर्ट हो तो मुझे बताओ ना, उससे पहले की चीज़ पे क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस देना नेसेसरी हो जाएगा।
क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, अभी मैंने बताया 92,000 केस सुप्रीम कोर्ट अलोन में पेंडिंग है। 60% से ज़्यादा केस का पार्टी कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। तो अगर गवर्नमेंट कोई अपने केस की लॉ और फैक्ट को पहले ही सुप्रीम कोर्ट को पूछ ले और नीचे हाई कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट एक्सक्यूज मी माय बैड उसी फैक्ट को यूज कर ले जो एडवाइजरी थी, तो सारे केस जीतती रहेगी, तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये तो अलाउ नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एडवाइस दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, मैंडेटरी नहीं है एडवाइस देना। The giving of advice by Supreme Court is not mandatory if it is a question of law or fact, because the government of India is also a party to a lot of cases. But in case of pre-constitutional measure, it is mandatory. In any which case, जो भी एडवाइस होगी, क्योंकि वो एडवाइस है, तो प्रेसिडेंट मैडम या सर पे बाइंडिंग नहीं है. It's just an advice. It is not binding on the president. All of this is something that we have discussed at length in our classes. Let's quickly look at the question. Article 143 of the Constitution of India lays down that the Supreme Court may be required to express opinion. May be. Look at the language. यही हम मैड में सिखा रहे हैं. May be required to express his opinion. है ना? दो ऑप्शन है, जहाँ पे कंपलसरी है एक में, यहाँ पे कंपलसरी है और यहाँ पे ऑप्शनल है. May be required to express his opinion. ऑप्शनल है कि वो अपने मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि उसको जबरदस्ती देना पड़ेगा. May be required to. सही हो गया. सेकंड, ऑल इनकम्पसिंग बना रहे हैं इसको कि दोनों केसेस सही हो जाए. अब यहाँ पे बोलता है आर्टिकल 43 लेज डाउन द सुप्रीम कोर्ट मस्ट एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन, तो गलत हो जाता है. सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट एडवाइज ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123. नहीं, बाइंडिंग नहीं होती, वो सिर्फ एडवाइस होती है. हमने तो आंसर क्या हो जाएगा? बाइंडिंग नहीं है, ये सही है, तो वन ओनली, है ना? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. हमने कुछ कवर किया था क्या? बिल्कुल किया था. यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट 143 और जो मैंने बताया क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, दोनों में बता दिया नॉट एनफोर्सेबल है, नॉट बाइंडिंग. क्या क्वेश्चन में आया था? एज इट इज, है ना? आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन फॉर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट बाइंडिंग एंड नॉट एनफोर्सेबल. द एडवाइजरी ओपिनियन गिवन टू द प्रेसिडेंट कैन बी एनफोर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, कैन बी एनफोर्स्ड नहीं, है ना? तो ये सब The Supreme Court may choose to render an opinion. बिल्कुल सही बात है. May choose not to render an opinion. Statement 2 is correct. तो उससे आप एक्सट्रापोलेट कर सकते थे, बट ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. नेक्स्ट 4 का 2 ही होना चाहिए भाई. एक बार देख भी लेते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज USSR, इंटरचेंज की पॉसिबिलिटी, तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया. बिल्कुल सही है. कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी चीज़ है जो दोनों सेंटर और स्टेट की बात कर एक्सक्यूज मी, दोनों सेंटर और स्टेट को साथ लेने की बात करती थी, वॉज ऑस्ट्रेलिया, है ना? डिस्कस भी करा हुआ है हमने, याद करने के तरीके भी बता रखे हैं. और कनाडा क्या करती थी? एनीथिंग विच हैज स्ट्रॉन्गर सेंटर, तो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी टिल्ट वाज कनाडा. तो कनाडा वो करेगी किसी भी चीज़ में जहाँ पे सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है फेडरल स्ट्रक्चर में, बट किसी भी चीज़ में फेडरलिज्म जहाँ पे स्टेट सेम पार्ट्स हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया करता था. तो ये तो हो गया जी अस्टमाइल USSR विच इज रशिया टुडे, और ये ऑस्ट्रेलिया, तो ये दोनों गलत हो गए. इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट USA एब्सोल्युटली करेक्ट. पूरी की पूरी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हम करते हैं तो USA से ही सीखते हैं. इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ वेरी टफ प्रोसेस, वो भी हमने वहाँ से ही लेने की कोशिश करी है. सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, कनाडा, बिल्कुल सही है. क्या है सेंट्रीफ्यूगल? आप पढ़ते भी होंगे, एक रेडियल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है. रेडियल मतलब बीच से बाहर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सब कुछ अंदर आ रहा है. तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब सब कुछ अंदर आ रहा है. कैसे? ये जितनी भी स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इन सब की पावर सेंटर में आ रही है. सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी टिल्ट. कनाडा, पहला दूसरा सही आंसर हो गया. 2, 4 का 2 भी लग गया. मैथ भी है, लॉजिक भी लग रहा था, सब कुछ हो रहा था, बहुत ही सिंपल था. ये तो चेक भी नहीं करना चाहिए कवर किया था नहीं किया था, सबसे बेसिक चीज़ों में भी होता है. यहाँ पे भी था इंडिपेंडेंस जुडिशरी USA, क्वासी फेडरल कनाडा, कॉन्करेंट ऑस्ट्रेलिया, फंडामेंटल ड्यूटी रशिया. टेस्ट में भी होगा. टेस्ट में एज इट इज एक रिप्लिका टाइप ऑफ क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेट से क्या है, उसके एक्सप्लेनेशन में देखो इंपीचमेंट USA, फेडरल कनाडा, कॉन्करेंट ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही बेसिक है, तो क्या ही दिखाना है. नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is correct regarding the right to property? Right to property was a part of the fundamental rights. Absolutely correct. आपको पता है 19(1)(f) 31 में राइट टू प्रॉपर्टी की बात होती थी. 44th अमेंडमेंट आई 1978 में, उसको हटाकर आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया. सबको पता है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. सेकंड भी वही है, राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, बोथ 1 and 2. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो ऑफकोर्स आर्टिकल होगा, और यही वो आर्टिकल भी है. अगर अमेंडमेंट है, यहाँ पे अमेंडमेंट है, तो हो सकता है पहले कहीं और हो. समझ में आ रहा है? 300 तो नहीं लिखा, ए मतलब एक अमेंडेड आर्टिकल होगा. अगर अमेंडेड आर्टिकल होगा तो हो सकता है पहले कहीं और हो. पता भी होता है, ऐसे बहुत ही सिंपल है. आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी. हमने कवर किया था क्या? गोज एंड सेट, बिल्कुल. 44th अमेंडमेंट से चेंज हुआ था. आर्टिकल्स 91(f), 31, 300A पार्ट भी इंक्लूड कर दिया. कौन से पार्ट में आ रहा है ना? एज इट इज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यही हमारा क्वेश्चन भी था. लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है. रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी का स्टेटमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A. पहले उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल भी रहा है. इवन इफ यू जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेस्ट सीरीज, मोर देन एनफ, है ना? चलो 15, which of the following articles
कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब आपको पता है 358, 359 हमने बहुत बार, मतलब मैंने लास्ट पॉलिटी एफएलटी में भी डिस्कस किया और क्लास में तो किया ही है। 358 क्या है? ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है? वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन में। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड हुआ था 44th अमेंडमेंट से ऐड, उसमें नहीं होती। एक्सटर्नल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आपकी जितनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह है वो सब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी। 359 पूरी की पूरी नेशनल इमरजेंसी में लगती है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उसमें बोलते हैं कि 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं हो सकता। ये भी अमेंडमेंट से आया था 44th अमेंडमेंट से, और ये हम बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। अब क्या 32 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिसर्च के बाद मैंने इसका आंसर फाइंड किया, तो आई एम विलिंग टू शेयर इट विद यू इवन एट द कॉस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो। आर्टिकल 32, क्या ये आर्टिकल भी सस्पेंड नहीं हो सकता? तो ये लिस्ट में क्यों नहीं है भाई? आंसर तो ए है, 20 एंड 21। यहाँ पे 32 क्यों नहीं लिखा हुआ अगर ये सस्पेंड नहीं हो सकता तो? क्योंकि ये सस्पेंड मतलब कैन नॉट बी सस्पेंडेड है ना, तो क्या ये सस्पेंड हो सकता है अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो? हाँ, अब मैं बताता हूँ इसका सीन क्या है। बेसिकली लेट अस अज्यूम 1 जनवरी को इमरजेंसी स्टार्ट हुई, 7 जनवरी को इमरजेंसी एंड हुई, अब 8 जनवरी आ गया। यहाँ पे 32 की तो सस्पेंड ज़्यादा नहीं है, बट राइट टू मूव टू द कोर्ट अंडर 32 इज सस्पेंडेड। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 32 सस्पेंड है ना। राइट टू मूव टू द कोर्ट अंडर 32, अगर आपकी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुई 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में, तो 1 से 7 के बीच में ही आप 32 में कोर्ट में चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। But your right to move to the court for a fundamental right violation during national emergency under Article 32 after the emergency ends is there. तो क्या मैं 8 जनवरी को 32 लेकर, जो इंसिडेंट नेशनल इमरजेंसी के दौरान हुआ था, मेरी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता, लेकर जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं। So right to move to the court under 32 is suspended. 32 altogether is not suspended, but we still assume that it is suspended. And you know that Article 359 specifically talks about 20 and 21 protection and life and personal liberty वाला ये, और protection वाला ये, जो suspend नहीं कर सकते under proclamation of national emergency in both the cases, है ना। ये वाला क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये सिर्फ external होता है, तो question को specific बनाना पड़ता है। UPSC is very careful with the language of questions they're asking. Have we covered it? Yes, 358 पूरा कवर किया हुआ है, 359 पूरा कवर किया है, 2021 समझा रखा है, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 358 359 पे पूरा एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2021 पूछा ही है, एक 300 है, जो पिछला क्वेश्चन आ गया वो भी पूछा, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन निकल गए, है ना। खैर, क्वेश्चन 47, दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन, बट वी यूजुअली कवर इट इन द पॉलिटी सेक्शन। 1919 में क्या होता है भाई? प्रोविंशियल डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होती है, वो एबॉलिश हो जाती है 1935 में, तो 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बन जाती है। ये जो डायरेक्ट थी ये सेंटर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड डायरेक्ट एट द सेंटर बिल्कुल सही है। बहुत सारे मेरे डियर फ्रेंड्स ने आंसर ए किया होगा, क्योंकि हम यूजुअली यही पढ़ते हैं। अबॉलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल बहुत सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं मिलती है, बट द ब्यूटी ऑफ आर कॉन्टेंट रीजनमेंट, आई विल शो यू। लास्ट पॉइंट, abolish the Council of India 1858, 1935 के एक्ट के फीचर्स हैं, डायरेक्ट एट द सेंटर, provincial autonomy, excuse me, and abolishment of the Council of India। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है यहाँ पे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी है और डायरेक्ट एट द सेंटर भी है, वो तो अलग बात है, बट ये वाला जो पॉइंट था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हाईलाइट करना। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा option number D, and any well-read aspirant from a good source would have studied this, and that is why the answer becomes all 1, 2 and 3। ज़्यादा इसमें कुछ explain करने का है नहीं, and with this I think I was able to do justice to all the 14 questions that came from polity sections। Polity section in the most latest UPSC setup of questions, which is the geoscientist examination, and एक की एसेंस है, 2 चीज़ें थी। एक, हम एग्जामिनर माइंडसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स समझे जो सबसे लेटेस्ट हैं। दूसरा, आई होप आई वाज एबल टू डिलीवर जस्टिस टू द फैक्ट कि कैसे, हाउ, व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट इन पॉलिटी, एंड द राइट वे टू टीच वुड नॉट बी कोर रट्टाफिकेशन, बट आंसरिंग ऑन व्हाई, द बेसिक्स, द कॉन्सेप्ट्स, द फंडामेंटल्स। अगर आपने व्हाई का आंसर ढूंढा, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिखाई भी थे, यू माइट सी इट एज अ नुआंस्ड लेवल, बट इट इज नॉट सो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फॉल इन प्लेस करती हैं, सॉर्ट होती हैं, अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हो। On that note, thank you so much for joining in. My name was Dhruv Jain. I hope I was able to do justice. In the comments also, before I go, एक कमेंट वीडियो में मतलब कमेंट्स में बता देना, डू यू गाइज नीड अ मास्टर स्ट्रैटेजी सेशन ऑन पॉलिटी। उसमें मैं आई विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल द थीम्स दैट यू शुड लुक एट, करंट अफेयर्स से कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, PYQs को कैसे एनालाइज करना है पॉलिटी के लिए, कौन से टॉपिक्स कहाँ से कितनी डेप्थ में पढ़ने हैं, पिछले ट्रेंड्स क्या है, PYQs क्या कहता है, क्या पढ़ना है ना, ऑल द मास्टर स्ट्रैटेजी, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट और PPT। आई वुड हैव टू रिसर्च अ लॉट ऑन दैट, सो इफ देयर इज any help that I can do for you, please let me know. I'll come out with it on YouTube only. तो ऐसा मत समझना किसी पेड कोर्स का पार्ट होगा, अगर आपको चाहिए तो please let me know. This was Dhruv Jain. I'm a faculty of Polity at Understand UPSC. Thank you so much. Signing off until we meet next time. See you. Bye bye. Take care.